فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدہ دا اکونومسٹ بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمہ جہت کردار کا معترف۔ جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی، چین اور مشرقی وسطی میں امریکی پالیسی بڑی تبدیلی کا اشارہ۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر مجبور۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات بھی برقرار رکھے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار بھی براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ امریکہ کا پاکستان کو بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور۔ دی اکونومسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ نے بھارت کا مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ دوسری جانب پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے شکست دے کر سیریز بھی جیت لی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی نصف سنچریاں۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 174 رنز ہی بنا پائی۔ ایلک اور ردرفورڈ کی نصف سنچریاں رائے گاں۔ صاحبزادہ فرحان مین آف دا میچ قرار۔ مین آف دا سیریز کا ایوارڈ محمد نواز لے اڑے۔ شاباش ٹیم گرین۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا قومی کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے دل جیت لیے۔ جیت قومی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم، پاکستان کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ کو جیت پر مبارکباد۔ کہا امید ہے ٹیم کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی بھی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، پہلی بار 100 انڈیکس 1,42,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 18 پیسے کمی سے 282.53 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد اقصی پر اسرائیلی وزراء اور یہودی آباد کاروں کے حملے کی مذمت۔ القدس کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی اقدامات 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایسے واقعات مشرق وسطی کو مزید عدم استحکام کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے قابل اعتماد امن عمل میں بحالی پر زور دیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر کی مسجد اقصی میں پھر اشتعال انگیزی۔ 2000 سے زائد یہودیوں کے ہمراہ مسجد پر دھاوا، مسجد کے کمپاؤنڈ میں عبادت کا بھی دعویٰ۔ ادھر غزہ میں امدادی مراکز پر موت کا کھیل جاری، اسرائیلی فورسز نے مزید 92 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پناہ گزین کیمپس پر بمباری سے مزید 119 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی یرغمالی بھی فاقوں کا شکار، حماس نے ایک لاغر قیدی کی ویڈیو جاری کر دی۔ یرغمالی سرنگ میں اپنے لیے قبر کھودنے میں مصروف، اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے سے روک دیے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، سڈنی میں لاکھوں افراد کا مظاہرہ۔ ہاربر برج ہم سب فلسطینی ہیں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ویکی لیکس کے بانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ مظاہرین کی غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے۔ لندن اور مینچسٹر میں لوگوں نے خالی برتن بجا کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ فرانس، جنوبی افریقہ اور یمن میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے کیے گئے۔
सदर ट्रंप ने 31वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं। गजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। गजा में ग़िज़ा से मुतल्लिक काम कर रहे हैं, नहीं चाहते गजा में लोग भूखे रहें। अमरीकी एलची गजा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं और इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI के एहतजाज की कॉल फितना फसाद की कॉल करार दे दी। कहा, फितने ने योम इस्तेसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहिब वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी कल गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। ये गिरोह 26 नवंबर और मार्च समेत कई मरतबा फाइनल कॉल दे चुका। जब भी अहम इवेंट होता है ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। ईरानियों का अल्लामा इकबाल से एक ताल्लुक है। उन्होंने ईरानी सदर के दौरे लाहौर पर भी इशू बनाया। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। दूसरी जानिब शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन और सैलाब मुतासरीन में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। उधर रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज आज शाम खोले जाएंगे। कराची का मतला अबर आलूद, कहीं फवार तो कहीं बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की दिन भर मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। आज से मानसून बारिशों के नए स्पेल का भी इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। आज़मीन हद से वाजबात की वसूली का आगाज़ हो गया। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए वाजबात जमा करवा सकते हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 1116 अगस्त तक नए आज़मीन भी दरख्वास्त दे सकेंगे। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजबात की वसूली रोक दी जाएगी। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुतअद्दिद बिल्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीमी रिपोर्ट्स एजेंडे का हिस्सा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट और ज़ाबिता फौजदारी के तरमीम बिल पेश होंगे। मोटरवे पर अशाए खुरोनोश की ज़ायद कीमतों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक पर बहस जारी रहेगी। फ़राइज़ की अदायगी में जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात। यादगार शोहदा पुलिस और रावलपिंडी पर पुरवकार तकरीब। पुलिस अफसरान, एहलकारों और सिविल सोसाइटी की शिरकत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं। कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पुलिस के ऑफिसर और जवान फ़र्ज की अदायगी में जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा के अजीम अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस शोहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। पंजाब हुकूमत पुलिस के शोहदा के वुरसा के साथ खड़ी है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वालिद, ताया और चचा कत्ल में मुलविस निकले। तीनों भाइयों ने लड़की के मुंह पर तकिया रखकर और गला दबाकर कत्ल किया। मुल्जिमान की निशानदही पर बेडशीट, गुस्ल में इस्तेमाल अशिया भी बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान ने जिरगे के फैसले के बाद बिरादरी की मौजूदगी में लड़की को कत्ल किया। कत्ल केस में मजमूई तौर पर 14 मर्द और खवातीन मुल्जिम शामिल। जिरगे का सरबराह, तीनों भाइयों, गोरकुन रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हो चुके। मजीद 8 मुल्जिमान। सदर ट्रंप के मुशीर का भारत पर रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को माली सहारा देने का इल्ज़ाम।
अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका है। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना खामोश। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंग बंद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ख़त भेजने वालों में मोसाद, शाबाक और इसराइली फ़ौज के साबिक आला हुकाम शामिल। ख़त में कहा गया, हमास अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी यही किरदार अदा करें। इसराइली यरगमालियों की वापसी और गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे पर तवज्जो दें। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर का ज़मीर जाग उठा। गजा में इसराइली इमदादी मराकज़ को स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये भूखे शहरियों को खुराक के नाम पर गोलियों का निशाना बनाती है। इमदादी मराकज़ पर भूख के हाथों मजबूर लोग अपनी जान दाव पर लगाकर खुराक ढूंढते हैं। इसराइली लीडर इंसानियत का ढोंग रचाते हैं मगर साथ ही जंगी हथियार बांटते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ऑफिसर का निजी एयरलाइन अमले पर वहशियाना तशद्दुद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लातों, घूंसों और रॉड से हमला करके निजी एयरलाइन के 4 मुलाजमीन को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीय फौजी ऑफिसर को मुकर्रा वजन से ज़्यादा सामान ले जाने पर अदायगी का कहा तो वो आपे से बाहर हो गया। भारतीय फौज ने अपने ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात का वादा करके चुप साध ली। यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 68 तारकीन वतन हलाक, दर्जनों लापता हो गए। हादसा यमन के सूबे अवेन के साहिल के करीब पेश आया। कश्ती में 150 से ज़ायद अफराद सवार थे। अक्सरियत का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क इथोपिया से था। तारकीन वतन की कश्ती शदीद तूफ़ानी झक्कड़ों के बायस उल्टी। हुकाम के मुताबिक 12 अफराद को जिंदा बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा को एक बार फिर सेहतमंद शहर का एजाज़ हासिल। आलमी इदारा सेहत ने इसी मयार पर पूरा करने के पर सनद जारी कर दी। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत से सनद वसूल की। सऊदी अरब के 14 दीगर शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का एजाज़ पहली बार 2019 में मिला था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। एक रोज़ा मैच की सीरीज भी नहीं खेल सकेंगे। पीसीबी के मुताबिक फ़खर जमान आज वापस पाकिस्तान रवाना होंगे, जहां वो डॉक्टर्स की निगरानी में बहाली के अमल से गुरेज करेंगे।